Hello friends, now it's lesson number 6. First of all, I welcome you all. In this lesson, we will try to discuss the part of predicate as I have promised earlier. In this, we'll try to take verb, object and complement. These three things are different and we'll try to understand these terms through examples. It would be better if you are watching lesson number 6, you must have watched my other early lessons to have a link with these. So today I am trying to write the parts of predicate in terms of a table. This is predicate. It has mainly three parts, out of which one is verb, and this is very, very important. It has certain types. I am taking a few. First of all, main verb. Second, helping verb. Third, transitive verb and intransitive verb, and more types of verbs: finite and non-finite verbs, linking verbs, strong and weak verbs, regular and irregular verbs, primary and modal auxiliary verbs, dynamic and stative verbs, factitive verbs, etc. तो इन सब का जो मैं डिटेल में वर्ब्स का, इसके बाद का लेसन जो मेरा लेसन नंबर 7 होगा, उसमें मेरा टॉपिक होगा कि वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स. बड़ा टॉपिक है. एक सेंटेंस का, एक किसी भी सेंटेंस का वर्ब एक हार्ट होता है, बड़ा भारी भाग होता है, तो इसके बारे में अलग से लेसन हम करेंगे. एंड सेकंड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट इज ऑब्जेक्ट. इसकी कुछ पार्ट्स होते हैं, आगे देखिए. हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हम एग्जांपल जब लेंगे वहाँ हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे इसकी पहचान होती है. जेरेंड और जेरेंडियल फ्रेज, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है. पहले सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता था पीछे, जब हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट किया था. अभी ये जेरेंड एज ऑब्जेक्ट काम कैसे करेगा. सिमिलरली इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज ये एज ऑब्जेक्ट कार्य कैसे करेंगे. एंड लास्ट पार्ट इज कंप्लीमेंट. दो टाइप के बताए हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एंड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. सेंटेंस के अंदर और कई पार्ट्स बच जाते हैं, जैसे एडजंक्ट, वो भी एक पार्ट है जिसके बगैर भी एक सेंटेंस का मतलब निकल जाता है, और उसको और एडिशन कुछ बातें बताने के लिए एडजंक्ट का हम यूज़ करते हैं. लेट अस ट्राई टू हैव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टर्म्स. सब्जेक्ट, द डूअर और अबाउट whom something is called, that is something is said, that is called subject. काम करने वाला या किसी वस्तु के बारे में बताने वाला, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. एंड प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जो बात सब्जेक्ट के बारे में बोली जाती है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं. तो मेरा मैं 3-4 लेसन से इसके पीछे लगा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट. व्हाट कम्स बिफोर द वर्ब इन ए सेंटेंस or helping verb in a sentence, that is called subject, and the remaining part is called the predicate. Let us take one example. 3 young boys are playing football in a playground. So first here the verb is are, and before that 3 young boys, this is subject, and remaining that has been underlined, that is the predicate part. तो बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर ली है. Above, which is the heart of a sentence, heart of predicate, a word used to say something about some person, place or thing, or describing some action.
that is called verb. Let us take one example. We played football. We subject here and played खेला. क्या खेला? फुटबॉल खेला. तो यहाँ action is action verb. This is the verb. Played is the action verb. It is explaining action. And second example is I am a king. So here the verb is am, and no action is there. No main verb is there. It is telling about respect I. I is a king. मैं एक राजा हूँ. राजा कौन है? मैं सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है जी. Then object. What is object? Very important term. An object is a noun or pronoun which receives the action of the verb. Subject कार्य करता है और played एक्शन होता है. एक्शन का असर कहाँ होता है? एक्शन कौन रिसीव करता है? उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी प्लेड फुटबॉल. हम फुटबॉल खेले. हम खेले क्या खेले? फुटबॉल खेले. तो फुटबॉल लेके उसका एक्शन रिसीव कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. एंड द थर्ड टर्म इज कंप्लीमेंट. इट इज अ वर्ड, क्लॉज और फ्रेज that is needed to complete a given expression, that is called complement. Let us take one example. The teacher appointed Ravi monitor. टीचर ने रवि को क्या अपॉइंट किया? मॉनिटर किया. मॉनिटर का लिंक रवि के साथ है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जेक्टिव कंप्लीमेंट. ऐसा कंप्लीमेंट, ऐसा पूरक जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. Now second example is Ram is a doctor. Ram is a doctor. राम क्या है? एक डॉक्टर है. तो डॉक्टर राम का लिंक है. डॉक्टर राम के बारे में बता रहा है, डॉक्टर राम को एक्सप्लेन कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. अब मैं केसेस लेकर टेबल के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स. तो बड़ा एक एनिमेटेड वे से मैंने पावर पॉइंट से किया है. केस 1, हिज प्रेडिकेट इज अ वर्ब इन सिंगल वर्ड. कहता वर्ब सिंगल वर्ड में हो सकता है, जो कि ज़्यादा वर्ड हो उसके. तो सिंगल वर्ड कैन एक्सप्लेन द सेंटेंस हियर. अ वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. वर्ब एक वो चीज़ है जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जो एक्शन को डिस्क्राइब करे, एन इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी की होने की, किसी की अवस्था बताए, उसको हम वर्ब बोलते हैं. मैं पहले बताया. दिस टेबल नंबर 1. टेबल को मैंने ऐसे करने की कोशिश की है. जो लेफ्ट साइड है वो सब्जेक्ट पार्ट है एंड राइट साइड कलर्ड प्रेडिकेट. सो इन दिस टेबल वर्ब है जो सिंगल वर्ड, तो ये मैंने बनाया है. लेफ्ट साइड को हम साथ साथ वैसे डिस्कस करेंगे, पर हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. शी वीप्स. वह रोती है. तो यहाँ वर्ब कौन सा हुआ? वीप्स, रोने वाला काम. अब आप सेंटेंस देखें कि में ऐसा लगता है किसी के वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. तो सारा क्या चक्कर है सारा ये? जब हम टेंसेस करेंगे, जब हम वर्ब की टाइप करेंगे, तो वहाँ ये सारा समझ आ जाएगा. और एक दिन ऐसा आएगा कि हम हिंदी और इंग्लिश में हम अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे. जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी हेल्प में वर्ब की मास्टरी हो जाती है, बाकी चीज़ें सारी अपने आप हो जाती हैं. यही कारण है कि मेरा अगला लेसन टाइप्स ऑफ वर्ब्स काफ़ी लंबा चौड़ा लेसन होगा, तो वहाँ हम ये करेंगे. हम टेकिंग सेकंड एग्जांपल एज वी लाफ. तो हम हंसते हैं. लाफ इज द वर्ब हियर एंड इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्ड. राधा जंप्स. राधा जंप करती है. देखो यहाँ ऐसे लग गया है, ऊपर भी ऐसे लगा है, नीचे सेकंड में भी ऐसा नहीं लगा. फोर्थ एग्जांपल इज यू कम. तो यहाँ पर है वर्ब दैट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. मैंने टेबल में आया था, वहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा था. तो इसमें शी वीप्स एक्शन सेंस निकल गई इससे. इसको आगे शब्दों की जरूरत नहीं है, इससे सेंटेंस का मीनिंग निकल गया. तो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. तो सभी जहाँ पर वीप्स, लाफ, जंप्स एंड कम, दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स.
So I'm taking case number 2. In predicate, verb has one object. Verb has one object. यानी verb के साथ एक object है. यानी predicate has two words, two terms here. One is verb and other is. तो second table में 3 column बनाया हमने. पहला first is for subject and second predicate. It contains verb and object. ऐसा भी हो सकता है कि verb के साथ single subject भी हो सकता है. My father trusts me. मेरे पिताजी मेरे पर विश्वास करते हैं. ट्रस्ट का इफेक्ट किसके ऊपर है? मी के ऊपर. सो मी इज ऑब्जेक्ट हियर. सेकंड एग्जांपल इज द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग. लड़की एक गाना गाती है. लड़की गाती है. क्या गाती है? एक सॉन्ग गाती है. तो इस सॉन्ग के ऊपर एक्शन वर्ब का उसका असर आ रहा है. तो ए सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट. द पियन रैंग द बेल. चपड़ासी ने घंटी बजाई. चपड़ासी बजाता है. क्या बजाता है भाई? एक्शन करता है. किस पर एक्शन करता है वो? घंटी के ऊपर करता है. घंटी एक्शन रिसीव कर रही है. दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड रैंग इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. फोर्थ एग्जांपल इज द टीचर पैटेड शाम. टीचर ने शाम को शाबाश दी, उसको पुचकारा. तो यहाँ देखिए ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट to give complete sense, to commit the sense of the sentence is known as transitive verb. इससे पहले जो हमने केस 1 था वहाँ पर verb के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था. जब verb के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए और सेंस उसकी सब्जेक्ट की पूरी हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव. और जब वो verb के बाद कोई ऑब्जेक्ट या कोई और ऐसा कुछ आए उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. Let us take case number 3. A verb has two objects with it. देखो पहले verb सिंगल था, उसके बाद verb के साथ एक ऑब्जेक्ट आया और अब verb के साथ 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. One object is called indirect object, that is living object, and other is called direct object. जैसे केस नंबर 2 में ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट था. जब सिंगल ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. पर जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसका वर्ब का सीधा एक्शन पड़े और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद इस पर असर हो. जनरली जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. टेबल नंबर 3 सेम वी आर टेकिंग इन द टेबल 4 कॉलम्स. फर्स्ट इज फॉर सब्जेक्ट सिमिलरली लाइक दिस. वर्ब, ऑब्जेक्ट, indirect, adjective for living thing and object direct non living thing. अभी देखते हैं कैसे. फर्स्ट एग्जांपल, you gave me a present. आपने मुझे एक प्रेजेंट दिया. आपने मुझे दिया. क्या दिया? ये प्रेजेंट. तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हाँ, किसको दिया? मुझे दिया. तो मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड एग्जांपल, माई ब्रदर सेंट मी ए वॉच. मेरे ब्रदर ने मुझे एक घड़ी भेजी. तो दिस इज वॉच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेंट इज द वर्ब. सिमिलरली मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश. और सेम इज द केस इंग्लिश इज. तो इससे सिमिलरली ऐसे एग्जाम्पल से मैं लास्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, ही गेव मोहन अ हेन. कई बार क्या होता है कि हमारा लिविंग दोनों भी हो सकते हैं. लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी. देखो एक ये मोहन है, उसने मोहन को एक मुर्गी दी. या मोहन भी लिविंग है और ए हैन भी लिविंग है. समटाइम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी ए लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल ए हैन इन द फॉर एग्जाम्पल above is living thing. Let us jump over to case number 4. 2 parts of predicate. One is verb and other is gerund. What is gerund? A verb plus ing. Here it is used as object. तो वही एग्जाम्पल लेते हैं. He likes boating. वह पसंद करता है. क्या पसंद करता है? बोटिंग. बोटिंग दिस इज नॉट वर्ब. दिस इज बोटिंग यानी बोट करना. तो ये हमें क्योंकि उसको बोटिंग पसंद है. दिस इज जेरेंड हियर.
तो जेरेंड से ज़्यादा जेरेंड होगा, जेरेंडियल फ्रेज होगा, उसके साथ कोई शब्द लग जाए तो उसका हम जेरेंडियल फ्रेज बोलते हैं। माई ब्रदर एन्जॉयज प्लेइंग हॉकी। ऐसे प्ले तो एक वर्ब होता है, पर इंग लग गया उसके साथ, एंड इट इज़ एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट, जेरेंड फ्रेज इज जेरेंडियल फ्रेज, प्लेइंग हॉकी, एंड वर्ब हियर इज एन्जॉयज। माई ब्रदर एन्जॉयज प्लेइंग हॉकी। मिस्टर कपूर, कपूर लिखा गया है, मिस्टर कपूर लव्स टीचिंग। मिस्टर कपूर टीचिंग करना पसंद करता है, तो टीचिंग इज द जेरेंड एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट, एंड लव्स इज द वर्ब हियर। आई हेट अब्यूजिंग अदर्स। मैं औरों को गाली निकालना पसंद नहीं करता, मैं उसको घृणा करता हूँ और उसको गाली निकालना। तो अब्यूजिंग इज द जेरेंड, and gerund is, remember, try to remember always one thing, gerund is found by verb plus ing. It can act as the subject as well as an object. In these, for example, this is gerund is acting as object. Let us take other example. Two parts of predicate, one is verb and other is infinitive. हाँ जी, एक part verb हो सकता है, दूसरा infinitive हो सकता है। हमने पास से पीछे पहले भी किया, सब्जेक्ट में भी किया था। इन्फिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके आगे शुरू में टू लगा दो तो क्या बनता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। हियर इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। टेबल नंबर 5, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, द क्रो ट्राइड टू फ्लाई। क्रो ने कोशिश की उड़ने की, टू फ्लाई। जैसे फ्लाई के आगे फ्लाई वर्ब होता है, उसके आगे टू लग गया तो ये बन गया हमारा इन्फिनिटिव। शी फॉरगॉट टू टर्न माई बुक। उसने मेरी पुस्तक वापस करना भूल गई। मैं मेरी पुस्तक वापस करना भूल गई। शी सब्जेक्ट हियर, फॉरगॉट इज द वर्ब हियर, एंड टू रिटर्न इज इन्फिनिटिव। टू रिटर्न माई बुक, दिस इज इन्फिनिटिव फ्रेज। I hoped to secure first position. To secure is the main. This is the infinitive here. Hoped, verb, I subject, to secure first position. This is infinitive phrase. जब infinitive के साथ कुछ शब्द कुछ लग जाए, कोई वाक्य कुछ लग जाए, तो उसको हम infinitive phrase, similarly for gerund, को उसके साथ शब्द लग जाए तो उसका ये बोल देते हैं। They would like to visit the you. जहाँ वर्ब के दो पार्ट है, वुड एंड लाइक। टू विजिट इज द इन्फिनिटिव हियर एंड लाइक दिस। आई थिंक आपको जेरेंड और इसका पता लग गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। हियर प्रेडिकेट हैज 3 पार्ट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। मैंने ऊपर भी जो उसको हाईलाइट किया जिसकी हम बात कर रहे हैं। या मैंने प्रेडिकेट तो करिए, सब में किया, वर्ब किया था पीछे, और जहाँ ऑब्जेक्ट भी कर दिया और कंप्लीमेंट सब कुछ कर दिया। जब मैंने पीछे मेरे जो केसेस थे, मैं जिस बात को डिस्कस करता था तो वहाँ पर वो होता लाइक दिस। अब मैं तीनों को कर दिया सारे। दिस इज टेबल नंबर 6। इट हैज एवरीथिंग। इट हैज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सम अदर थिंग। इस मिनट द टीचर अपॉइंटेड। टीचर ने अपॉइंट किया रवि को अपॉइंट किया। दिस इज ये ऑब्जेक्ट होगी, और क्या किया, इसका पूर्व क्या है, यानी रवि को क्या अपॉइंट किया। ये क्वेश्चन, इसका आंसर है मॉनिटर। किसको अपॉइंट किया, रवि को किया। तो मॉनिटर इज क्वालिफाइंग रवि, उसके बारे में बता रहा है, रवि के बारे में। सो दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एंड मॉनिटर इज नोन हियर। The members elect him secretary. Members ने उसे elect किया। क्या elect किया, secretary। किसको किया, him को किया। तो this is complement। ये complement कौन सा, objective complement है ये। Third example, they chose Ram their leader. उन्होंने राम को अपना लीडर चुना। So their leader is the complement। किससे संबंध है इसका, ऑब्जेक्ट राम से है, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। शी नेम्ड हर होम शर्मा निवास। उसने अपने घर का नाम शर्मा निवास रखा। शर्मा निवास इज लिंक्ड टू हर होम।
हर होम से लिंक्ड है इसका, एंड नेम्ड इज वर्ब हियर, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट. एनी कंप्लीमेंट दैट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. अगला देखते हैं. Here predicate has 3 parts, verb, object and complement. तो यहाँ थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, पहले नॉन और नॉन फ्रेज थे, अब थोड़ा और करते हैं टेबल नंबर 7 में. अब हम कंप्लीमेंट के एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल ये लेंगे, तो ये भी हो सकते हैं. दे थॉट इट अर्जेंट, जहाँ वैसे ये थॉट इट अर्जेंट, किसको अर्जेंट? इट, उसको अर्जेंट. अर्जेंट इज रिलेटेड टू, अर्जेंट हैज कनेक्शन विद इट. शी कीप्स हर हाउस क्लीन. क्लीन का लिंक किसके साथ है? हर हाउस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ. तो क्लीन इज द ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हियर. योर लेटर मेड मी एंग्जियस. तो एंग्जियस, चिंतित किया आपके लेटर ने मुझे, तो योर लेटर मेड मी एंग्जियस, तो मी से लिंक है एंग्जियस का. एंड लेटर इज योर लेटर हियर. The poem Weariness, something is missing in Rag. Considers the poem, the paean Weariness. The principal considers the paean Weariness. The headmaster considers the paean very honest. The officer considers the, तो जहाँ something is missing here, so you can write anything here. Weariness. Weariness is linked with the paean. So these are examples of objective complement. तो जब ऐसा ऑब्जेक्ट के बाद कोई चीज़ आए और उसका और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, उसका लिंक ऑब्जेक्ट के साथ हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. अभी हम और करेंगे कि बट इज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. 2 parts of predicate, one is verb and the other is complement. I am taking first example. Ashoka was a king. अशोका वाज, हाँ जी, कुछ पता आगे क्या था? किंग कौन था? अशोका था. अशोका एंड किंग आर इक्वल थिंग, दोनों रिलेटेड है. एंड किंग इज अ नाउन. इसको हम बोलेंगे बट इज किंग. किंग इज द सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. शी वाज लेजी, एडजेक्टिव है कि शी वो सुस्त थी. सुस्त कौन था? शी थी. सब्जेक्ट सुस्त था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स कहाँ पर हैं? ऑन द, बुक्स के बारे में बताया गया आगे, ऑन द टेबल. सो ऑन द टेबल इज द सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, बिकॉज उसका लिंक है द बुक्स के साथ. एंड फोर्थ इज नोबडी इज इनसाइड. अंदर कोई नहीं है, तो इसका लिंक है नोबडी के साथ. ही इज अ डॉक्टर. जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल. वह कौन है? मैं डॉक्टर. इज वर्ब हियर. दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज एक्टिंग एज वर्ब हियर. मैं अगर जब लेसन अगला करूँगा तो वहाँ हर चीज़ बताएंगे कि व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब. ये पता कैसे लगता है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? इसके सारी अगले लेसन में काफ़ी 15-20 मिनट का वो हमारा वीडियो होगा. द कंप्लीमेंट हियर इज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज लिंक्ड टू द सब्जेक्ट. तो आज हमने यानी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट करने की कोशिश की. पहले एक टेबल बनाया और टेबल के थ्रू आपको एनिमेशन के थ्रू ये कराने की कोशिश. बाकी एग्जांपल के साथ मैंने सेंटेंसेस में वर्ब का, ऑब्जेक्ट का और कंप्लीमेंट का अलग अलग तरीके से ये करने की कोशिश की. इसको और समझने के लिए, अगर ना आपको समझाए तो बार बार वीडियो देखिए. और समझने के लिए आप अच्छी सी तो ग्रामर ले लो, अपने बड़ों से डिस्कस करिए. इसको अपने यहाँ रुकना नहीं है. जस्ट एक जो मैंने किया ये तो जस्ट ए पार्ट ऑफ, कुछ भी नहीं है. इंग्लिश तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अगर एक चीज़ के पीछे लगे, उसको तैयारी करने के लिए बहुत समय लगता है. तो एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. मेरा जो वीडियो बनाने का एक मकसद यही है कि हमारे स्कूल के बच्चे जिनको इंग्लिश बड़ा होगा लगता है, उनको एक बार एक पढ़ने का उनकी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, फिर वो कभी पीछे नहीं रहेंगे.
होमवर्क इस बार मैं इसे वीडियो में नहीं डाला है, तो बच्चों को होमवर्क अलग से भी भेजूँगा। नेक्स्ट लेसन विल बी 7। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। अगर आपको वर्ब्स के बारे में समझ आ जाए, बाकी चीज़ें सारी आसान लगती हैं। कौन सा हेल्पर मेंबर हो गया होगा, कौन सा क्या होगा, एक बड़ा हम डिस्कस करेंगे। मेरे एक साथी हैं, एक अध्यापक, उन्होंने मुझे एक राय दी थी आप कि इसके बाद वीडियो की मेरी लेंथ होगी वो 15-20 मिनट के बीच बीच हुआ करेगी, और चीज़ों को मैंने और एग्जांपल लेकर, काफ़ी वैरायटी एग्जांपल लेकर जब हम वर्ब्स को डिस्कस करेंगे वहाँ हमें काफ़ी एग्जांपल लेनी पड़ेगी ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Thank you everybody for watching this video, and for student, wait for the homework by tomorrow. Okay, thank you very much.